Good morning, dear students. Yesterday there was no video released by me because of some busyness. Okay, so today I am issuing a new video for your upcoming half yearly examination revision video. Okay, and this is the topic from the chapter quadrilateral, and the most important point, the most important topic of the quadrilateral is also the midpoint theorem. Okay, so if we solve every problem of the quadrilateral and we don't have the understanding about the midpoint theorem, then it is very shameful. Okay, so we have to go through the theorem, understand the theorem and proof of the theorem, so that we can also solve the some examples. Okay, so let's start. So what is the midpoint theorem? In the midpoint theorem, it is said that in a triangle, I will write here, but first you have to understand. In a triangle, suppose that you have a triangle, okay, and you have to take two sides. Suppose that this is the triangle A, B and C, okay, and you have to take the midpoints of two sides, any two sides. Suppose that this is the first side and this is the second side and this is the third side. Okay, so you have to take here the midpoint of AB, suppose that it is D, and the midpoint of AC, suppose it is E. Okay, if we meet both midpoints, okay, so the line form DE is parallel to the BC. Okay, this is the statement of midpoint theorem. Okay, it means you also represent is that if we take a triangle, in a triangle the midpoints of two sides, okay, when we midpoints of two sides meets and it forms a line which is parallel to the third side of the triangle. This is the first, this is the AB is the first side, AC is the second side and BC is the third side. This is the third side and DE is parallel to beta क्या है, BC है. DE is parallel to the BC. This is the theorem. Okay, I hope you understand this very well. Okay, just write it. मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बच्चे. Okay, स्टेटमेंट को भी मैं लिख दे रहा हूँ. इसे हटा दें, इसे हटा देते हैं, फिर से इसको हम बनाएंगे प्रूफ करते वक्त. ठीक, तो से यहाँ पर आपके पास है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल. द लाइन segment joining the midpoint of two sides of triangle, two sides of triangle is parallel to the थर्ड साइड. ठीक है, ये बच्चा थर्ड साइड के पैरेलल होता है. ठीक है, अब देखिए द लाइन सेगमेंट, किस लाइन सेगमेंट की बात कर रहा है, वो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स, जो दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है. तो बच्चे इसका फिगर आप ऐसे बना सकते हैं, ऐसे ड्रा करेंगे. सपोज दैट यू हैव ट्राइंगल ए बी सी and here is the midpoint and here is the also midpoint. Okay, suppose that this is the point D and this is the point E. When you
join these two midpoints, okay, then this line segment DE is parallel to the BC. DE is parallel to the BC, and अगर बेटा ये मिड पॉइंट है D, तो इसका मतलब क्या हो गया, AD इज इक्वल टू DB, एंड ये बेटा इसका मिड पॉइंट है, यानी ये दोनों आपस में इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल थे, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो बच्चे AE इज इक्वल टू EC। अगर ये कंडीशन है तो ये कंडीशन आएगी। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। आर यू गेटिंग इट? ओके, चलिए, ये तो बेटा मिड पॉइंट थ्योरम हो गया। इसके साथ ही मिड पॉइंट थ्योरम एक बात यह भी बताता है बेटा, जो DE है, जो DE की वैल्यू है, ये जो लाइन सेगमेंट है जो कि थर्ड साइड के पैरेलल है, इट इज द हाफ ऑफ थर्ड साइड, ठीक है। ये क्यों हो रहा है? तो बेटा ये इसको आपको देख के समझ में तो नहीं आएगा, लेकिन मैं इसको प्रूफ करूंगा तब आप समझेंगे, ठीक है। हम इस पूरे थ्योरम को प्रूफ करेंगे, ठीक है। उसके बाद इस पॉइंट को भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से DE इज द हाफ ऑफ द थर्ड साइड BC। जो लाइन सेगमेंट है ज्वाइनिंग टू मिड पॉइंट्स इज आल्सो द हाफ ऑफ द थर्ड साइड। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए प्रूफ करना शुरू करते हैं बेटा, ठीक है। तो आपका जो फिगर है, जो आपका ये डायग्राम है, यही रहेगा, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू मिड पॉइंट्स ऑफ द टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये हमें करना है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले बच्चे हम क्या करेंगे, प्रूफ। कैमरे में सब कुछ दिख रहा है कि नहीं? एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा दिख रहा है, सारी चीज़ें ठीक हैं और 7 मिनट हो भी गए हैं। तो टाइम का टेंशन मत लिया करिए, आराम से वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि वीडियो को लगातार आप देखेंगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी अपने आप। अब देखिए बेटा, क्या करना है आपको। सबसे पहले बेटा कंस्ट्रक्शन एक छोटा सा करेंगे इसमें। कंस्ट्रक्शन, ओके। ड्रा सी सबसे पहले बेटा ये DE को आप एक्सटेंड कर दीजिए, ठीक है। एक्सटेंड DE टू पॉइंट G। तो यहाँ पर बच्चे किसी एक पॉइंट हमने G तक इसको एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। उसके बाद बच्चे क्या करेंगे, ड्रा a line CM parallel to the BA। जो बेटा BA है, इसके पैरेलल हम एक लाइन ड्रा करेंगे ऐसे CM, ठीक। CM CF जो भी आप लिखना चाहें, which intersect DG at point F, ठीक है। तो इस पॉइंट को बेटा आप F मान लीजिए, है ना। यहाँ तक आपका काम हो गया, ठीक है, बहुत अच्छे से हुआ। अब क्या करिएगा, सबसे पहला आपका काम है कि आपको देखिए दिख रहा होगा यहाँ पर एक पैरेललोग्राम टाइप का, लेकिन ये गिवन नहीं है। आपको इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना चाहिए, ठीक है। अगर आप पैरेललोग्राम इसको प्रूफ कर ले जाएंगे, ठीक है, तो आपका काम आसान हो जाएगा। देखिए, अगर DBCF एक पैरेललोग्राम होता है, इन दिस केस जो आपका DF है ये पैरेलल हो जाएगा बेटा BC के, और क्योंकि बेटा DE जो है DF का ही एक सेगमेंट है, तो DF और DE और DF ये दोनों क्या बेटा कोलिनियर है। अगर DF इसके BC के पैरेलल है तो DE भी तो पैरेलल होगा, तो DE द पैरेलल टू द थर्ड साइड हो जाएगा। लेकिन अब इसको पैरेललोग्राम कैसे प्रूफ करें, तो बेटा पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आप जानते हैं
कि मिनिमम किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम होने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है कि कम से कम उसके अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल हो। कम से कम एक पेयर आपका जो अपोजिट साइड का है, चाहे आपको कोई भी, जैसे ये इसके पैरेलल हो और इक्वल हो, तो बेटा पैरेलल तो आपने बनाया है, डी बी पैरेलल टू सी एफ है, क्योंकि देखिए बी ए के पैरेलल आपका सी एम है तो बी डी के पैरेलल आपका सी एफ भी है। लेकिन ये दोनों इक्वल है कि नहीं, ये बात कैसे प्रूफ होगी? तो बेटा इन दोनों को इक्वल प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, देखिए क्योंकि ये जो है इसके इक्वल है तो इन दोनों को आपस में क्या करना होगा, इक्वल प्रूफ करना होगा। ठीक है, तो वो सारे चीज़ें हम करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन में ये बात हमने लिखा है, गिवन में जो बातें हैं वो बात हम अभी नहीं लिखे हैं, तो इसको आप चाहें तो शुरू में ही लिख दें या फिर यहाँ पर भी लिख दें। ठीक है, अब यहाँ पे गिवन भी लिख सकते हैं आप, गिवन चाहे तो सबसे पहले लिख दें या कंस्ट्रक्शन के बाद लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, कंस्ट्रक्शन से बाद लिखेंगे तो आपको फ़ायदा ये रहेगा कि जैसे सारे पॉइंट यहाँ पर नोट डाउन हो चुके होते हैं। ठीक है, तो आपको आसानी से रिप्रेजेंट करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जैसे गिवन में क्या है, क्योंकि डी बेटा मिड पॉइंट है, इसको क्या लिख सकते हैं, डी ए इज इक्वल टू डी बी, डी ए इज इक्वल टू बेटा डी बी, है ना, और ए इक्वल टू बच्चे क्या है, ई सी। ये दो बातें गिवन है और कोई चीज़ गिवन तो है नहीं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम क्या करेंगे बच्चे, देखिए हमारे पास दो ट्राइंगल यहाँ दिख रहे हैं, ए डी ई एंड सी एफ ई, है ना। अब देखिए इन ट्राइंगल ए डी ई एंड सी ई एफ, है ना, इसमें बच्चे हमें क्या क्या मिल रहा है, देखिए एक तो बेटा हमारे पास ए इज इक्वल टू ई सी है, एक साइड आपस में इक्वल है, यहाँ पे लिखिए ए इज इक्वल टू ई सी, है ना, गिवन लिखेंगे, ये हम गिवन है। दूसरी चीज़ बच्चे, दूसरी चीज़ देखिए यहाँ पर ये वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा। ठीक, तो एंगल ए ई डी इज इक्वल टू एंगल सी ई एफ, वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना। और बेटा तीसरी चीज़ देखिए, अब क्योंकि बेटा आपने बी ए के पैरेलल आपने सी एम को ड्रा किया है, यानी सी एफ को ड्रा किया है, देन बेटा जब दो पैरेलल लाइन होती हैं और एक ट्रांसवर्सल होता है, तो बेटा ये जो ए सी है, ए सी इज वर्किंग एज ए ट्रांसवर्सल, है ना। ए सी आपका ट्रांसवर्सल लाइन कर रहा है, का काम कर रहा है दो आपके पैरेलल लाइंस के बीच में। तो बेटा यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये वाला और ये एंगल हो जाएगा, बोलिए ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर बन जाएंगे। तो बेटा आपका डी ए ई इक्वल टू आपका ई सी एफ हो जाएगा, एंगल डी ए ई इज इक्वल टू एंगल ई सी एफ, है ना। यहाँ पे लिखेंगे बेटा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना। अब देखिए बेटा यहाँ पर एंगल साइड एंगल लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये दोनों आपस में बेटा ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गए। वी कैन राइट हियर सो दैट ट्राइंगल ए डी ई कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल सी ई एफ, है ना। लिखेंगे एंगल साइड एंगल, ठीक है, एंगल साइड या एंगल साइड एंगल आप लिख सकते हैं। अब देखिए ये एंगल साइड एंगल से ये दोनों आपस में क्या हो गए बच्चे, कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गए। अगर बच्चे ये दोनों कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गए, इट मीन्स बाई सिंपलिसिटी आप एक चीज़ देख रहे हैं, आपका ये है सी एफ इज इक्वल टू बेटा क्या है, डी ए है ना। अब यहाँ पे लिख सकते हैं सो दैट
CF इज इक्वल टू DA, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे बाई CPCT, होगा कि नहीं होगा? होगा। और बाई CPCT एक चीज़ और आएगी यहाँ पे, पहला क्वेश्चन यहाँ पे डाल लीजिए। और दूसरी चीज़ बच्चा हमारे पास आएगी बाई CPCT, ये D इज इक्वल टू EF भी आएगी, D इज इक्वल टू EF, जो कि अभी हमें ज़रूरत नहीं है, हम आगे आपको उसका काम करवाते हैं, ठीक है। अभी रुकिए। तो बेटा हमारे पास CF इक्वल टू DA आ गया। और हमारे पास यहाँ पर देखिए जो गिवन था, इसको एक क्वेश्चन नंबर जो गिवन था बेटा, यहाँ पर हम 1 और 2 मान लेते हैं, इसको अलग अलग लिखकर 1 2, ये चीज़ें गिवन हैं और ये थर्ड, ठीक है। तो देखिए 1 एंड थर्ड से आप करेंगे तो देखिए अगर ये बच्चा इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, है ना। देखिए DA इज इक्वल टू क्या है, CF इज इक्वल टू DA होगा और DA इक्वल टू DB है। तो बेटा ये CF इक्वल टू ये आ गया कि नहीं आ गया, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, यहाँ पे हम कर दे रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 बेटा ये वाला से देखिए यहाँ पे हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ये मैं गोला कर दिया, DA इक्वल टू BD है, और यहाँ पे क्या है बच्चे, CF इक्वल टू DA है। तो CF इक्वल टू DA हो गया। देखिए CF इज इक्वल टू DA इज इक्वल टू DA की वैल्यू क्या है बेटा, DB है, दैट इज CF इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, DB हो गया, ये मिल गया आपको। अब क्योंकि बेटा CF इज इक्वल टू DB हो गया, एंड यू नो वेरी वेल दैट यू हैव ड्रॉन द CF एज द पैरेलल टू द BD, ठीक है। CF इज आल्सो पैरेलल टू द DB, है ना, DB या BD जो भी कहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे, इसका मतलब दैट इज DB CF इज अ पैरेललोग्राम। अब बच्चा आपका जो DBCF है, अगर ये पैरेललोग्राम है, इट मीन्स DF यानी ये वाली साइड DF इस आल्सो पैरेलल टू बेटा BC हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, एंड व्हेन अपोजिट साइड्स आर पैरेलल देन बेटा जो आपका DE है ये भी तो इसी का एक सेगमेंट है, ठीक, कोलिनियर है। तो बेटा वी कैन आल्सो राइट हियर DE इज आल्सो पैरेलल टू BC, है ना, हेंस प्रूव्ड, मतलब जो आपका लाइन सेगमेंट DE था वो थर्ड साइड BC के पैरेलल हो गया, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक है। ये बेटा कंप्लीट आपका थ्योरम है। जब आपको थ्योरम पूछा जाएगा, अगर इस तरह से अगर पूछा जाता है कहीं, तो आप केवल इतना ही करेंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए, मैं समय देख लेता हूँ। सारी चीज़ें क्लियर है। 18 मिनट हुए, ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे। एक क्वेश्चन इस पर लगवाएंगे आपसे। नोट करिए इसे, ठीक है। और एक छोटा सा क्वेश्चन हमारे पास है, 1-2 क्वेश्चन और लेंगे हम, तो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं ताकि आप चलिए। अब देखिए इसी से रिलेटेड एक बेटा एक्सटर्नल बात है, इसी से जुड़ी हुई एक बात है जो हमने आपको शुरू में थ्योरम को समझाते हुए बताया था। वो ये कि DE इज द हाफ ऑफ BC और BC इज द डबल टू द D। मतलब ये जो लाइन सेगमेंट है जो थर्ड साइड के जो 2 मिड पॉइंट को मिला करके बना हुआ है और थर्ड साइड के पैरेलल है, ये बेटा थर्ड साइड का हाफ है, या थर्ड साइड इसका डबल होता है, ठीक है। इस बात को जरा सा समझिए, ठीक है। कैसे इस चीज़ को प्रूफ करिए। चलिए हटा दें, इसे हटा दे रहे हैं। चलिए ये तो हो ही गया। देखिए इस ट्रायंगल को देखिए, इसमें अभी भी हमने प्रूफ किया क्या बच्चे, हमने प्रूफ किया है कि DBCF एक पैरेललोग्राम है। ये बात तो प्रूफ हो चुकी है ना। अगर ये प्रूफ हो चुकी है तो बेटा तो हमारा क्या हो जाएगा, DF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, BC हो जाएगा। और जब आपने इन दोनों ट्रायंगल को देखिए DAE को और CEF को आपने कॉन्ग्रुएंस प्रूफ किया था
बेटा अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंस हैं, इसमें बेटा ये वाला साइड इसके इक्वल है और ये वाला साइड इसके इक्वल है, तो बेटा ये वाला साइड भी इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा, यानी डी इज इक्वल टू ई एफ होगा, डी इज इक्वल टू ई एफ, है ना, डी इज इक्वल टू ई एफ हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पर आप डी के प्लेस पर, ठीक है, डी इज इक्वल टू ई एफ हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, डी को डी एफ के प्लेस पर आप डी प्लस ई एफ लिख सकते हैं, डी ई प्लस ई एफ इज इक्वल टू बी सी लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए डी एफ का मतलब क्या है, डी एफ को बेटा डी प्लस ई एफ लिख सकते हैं, और डी एफ इज इक्वल टू बी सी है तो डी प्लस ई एफ इक्वल टू बी सी हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए डी इज इक्वल टू ई एफ है, यानी ई एफ के प्लेस पे भी आप डी ई लिख सकते हैं, यानी डी ई प्लस डी ई इज इक्वल टू बी सी। तो बेटा ये टू डी ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी। तो बेटा डी ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ बी सी। ये तो हम आपको समझा रहे हैं, यानी जो आपका डी होगा लाइन सेगमेंट, ये बी सी का हाफ होगा, यानी बी सी का हाफ करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ओके, चलिए इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। नोट करिए इसे, इसको ऐसे नोट करके बनाइए नोट, ठीक है। और डी इज इक्वल टू ई एफ कैसे हुआ, यहाँ पे ऐसे लिखिए, सिंस ट्राइंगल ए डी ई कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल सी ई एफ, है ना। हमने प्रूफ किया इसको पिछले वाले थ्योरम में जब कर रहे थे तो इसको प्रूफ किया था। तो बाय सी पी सी टी ये दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन है और क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको घुमाया गया है, इसको हटा ही दे रहे हैं पूरा। क्वेश्चन में ये है कि इन ट्रायंगल, ठीक है, इन ट्रायंगल साइड ए बी इज इक्वल टू, साइड ए बी की वैल्यू गिवन है, सपोज दैट यहाँ पे 7 दिया है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड ए सी इज इक्वल टू दिया है 9 सेंटीमीटर, ठीक है, बी सी इज इक्वल टू दिया है, बी सी इज इक्वल टू दिया है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, बी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर गिवन है। और क्या पूछ रहा है बेटा आपसे, डी ई इक्वल टू पूछ रहा है। अब इसका सबसे पहले तो आपको फिगर बनाना होगा। डी ई आपसे पूछा जा रहा है, वेयर डी और ई इसके मिड पॉइंट हैं, ओके, ऐसे लिखिएगा। इन ट्रायंगल ये सारे तीनों साइड दिए हैं, द लाइन सेगमेंट joining the mid points of AB and AC इज इक्वल टू। अब इसकी वैल्यू आपको बतानी है, आपको फिगर भी नहीं बना के दिया है। तो सबसे पहले बेटा आप क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन आए या ना आए, सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, आप फिगर ड्रा करेंगे, और जैसे जैसे बोला वैसे वैसे सब कुछ लिख देंगे वहाँ पर, एक नंबर आपका ऐसे ही बन जाता है। तो फिगर जरूर बनाया करिए, ठीक है, सबसे अच्छी ट्रिक है। और फिगर बना लेंगे तो क्वेश्चन लग ही जाता है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए आपको ट्रायंगल कहा, तो आप एक ट्रायंगल ऐसे प्यारा सा ट्रायंगल ऐसे अच्छा सा बना लीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए ए बी सी इसमें है, देखिए ए बी है, ए सी है, बी सी है, यानी ए बी सी ही तो है। ए बी सी चाहे आप ऐसे लिखिए चाहे ए बी सी ऐसे लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो वैल्यू है जहाँ जहाँ लिखा है वहाँ वहाँ लिखिए, ठीक है। अब जैसे क्या बोला है, ए बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ बेटा 7 सेंटीमीटर लिख दीजिए, थोड़ा सा गैप करके लिखिए ताकि यहाँ पे कहीं मिड पॉइंट वगैरह बनाना हो तो आपके पास जगह रहे और फिगर अच्छा दिखे, साफ़ सुथरा दिखे, ठीक है। ए सी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे लिखिए 9 सेंटीमीटर, देखिए ए सी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। चलिए
दूसरा क्या बच्चे BC है, BC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख दी 8 सेंटीमीटर। आगे क्या कह रहे हैं, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड AC। सपोज दैट AB का कोई मिड पॉइंट बेटा यहाँ पर है क्या, D है, और AC का मिड पॉइंट क्या है बेटा, F है। ठीक है, हो सकता है आपको ये चीज़ कहा हो DF है, FC है, या जो भी है, तो आपको वही एज्यूम करना होगा। अब देखिए, मिड पॉइंट ऑफ AB एंड AC इज, हमें द लाइन सेगमेंट की वैल्यू बतानी है, यानी DF की वैल्यू हमें बतानी है, मिड पॉइंट की, जो इसमें वो कर रहा है, इसको लाइन सेगमेंट बना रहा है। तो हम क्या करेंगे बच्चे यहाँ पे, तो वी नो वेरी वेल दैट DF इज इक्वल टू, फार्मूला यहाँ लिखेंगे, फार्मूला, ठीक है, DF इज इक्वल टू 1/2 BC, है ना। तो बच्चे यहाँ पे BC की वैल्यू कितना है, 8 सेंटीमीटर, इक्वल टू क्या, 1/2 इंटू 8 इज इक्वल टू बेटा 4 सेंटीमीटर। ओके, दिस इज योर आंसर, है ना। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, हैं, और देखने में कितना पहाड़ जैसा लगता है, क्या होगा, कितना कन्फ्यूजन है। और फार्मूला देखिए इतना छोटा सा है, जो भी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। ये फार्मूला भी आप नोट किए होंगे, आपके नोट्स में तो होगा ही, मैं जब पढ़ा रहा था क्लास में। लेकिन अगर नहीं आपने नोट किया होगा उसको किसी वजह से, तो इसको एक बार फिर से नोट कर लीजिए, क्योंकि रिवीजन का एक अलग अपना नोट्स बनाइए, ताकि आप जल्दी से रिवीजन कर सकें। ठीक है, इसको पूरा बना लेंगे तो आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी। दुनिया भर की चीज़ों से बचने के लिए ये सब बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये कर लीजिए बेटा आप। और कुछ और एक दो क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड, जिस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए इसे नोट करिए। और एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन और आपके बीच में रखते हैं, जैसा कि ट्रायंगल पर भी ऐसा हमने क्वेश्चन बनाया हुआ था, ऐसे इस पर भी बना के दे रहे हैं। और जो आपकी डिजिट्स हैं वो चेंज हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन का जो भाव है वो सेम रहेगा, या क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है सेम लगेगा, ताकि आप सो दैट यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस वेरी इजीली। ओके, तो प्रैक्टिस किए रहेंगे तभी तो होगा बच्चे। आइए देखते हैं, जैसे कहा है द एंगल्स। अब देखिए ये इसमें मिड पॉइंट थ्योरम लगेगा नहीं, तो हम इसको जो है इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, फिर से यहाँ पे लिखेंगे द angles of a quadrilateral are in the ratio of 5:3:4:6. okay, तो 6 find all the angles of the quadrilateral। अब इसके सारे एंगल आपको बताना है, रेशियो में गिवन है। ठीक है, तो इसे तो आप कर ही लेंगे, जरा करके बताइए कमेंट बॉक्स से, उसका आंसर आना चाहिए। देखते सबसे पहले किसका आता है, बिना इसको आपको देखे इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर दे रहे हैं, लेकिन बिना देखे ईमानदारी से आप लोग इसका आंसर दीजिए। हम यहाँ पर इसी से रिलेटेड एक दूसरा क्वेश्चन करके दिखा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन यही रहेगा, आपको ये वाला क्वेश्चन करना है, इसका आंसर बताना है। ठीक है, दिस इज योर होमवर्क टेस्ट, इसका आंसर आप बताइए। और ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ, केवल रेशियो चेंज कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो रेशियो में चेंज कर दे रहा हूँ, देखिए ठीक। द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो ऑफ
3, 4, 12, 9. Find the angles of the angle sum property of a quadrilateral. The sum of all the angles of a quadrilateral is 360 डिग्री, है ना। 360 डिग्री बेटा होता है। तो यहाँ पर बच्चे क्या करेंगे, एक ट्राइंगल आपके पास क्वाड्रिलेटरल है ABCD। अब इन सब का सम बेटा एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब बेटा सबका रेशियो है, तो अगर सपोज दैट एंगल A इज इक्वल टू बेटा 3x, देन एंगल B इज इक्वल टू बेटा 4x प्लस एंगल C इज इक्वल टू 12x प्लस एंगल D इज इक्वल टू 9x इक्वल टू 360 डिग्री। ओके बेटा, सबको ऐड कर लीजिए। सबको आप ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, ये देखिए 9 3 12 दून 24, 24 4 28, 28 इक्वल टू 360 डिग्री। x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 360/28। इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ज़्यादा सॉल्व मत कीजिए। थोड़ा सा कर दे रहा हूँ सॉल्व, जैसे 2 से काटिए इसको, 2 1 जाए 2 14 जाए, ठीक है 18 और फिर 90/7 आगे बच्चे। ये x की वैल्यू है। अब सभी एंगल बताना है, तो जैसे पहले एंगल है, एंगल A की वैल्यू क्या बेटा 3x आपने माना है, क्या हो जाएगा 3 × 90/7 हो जाएगा। कैलकुलेट करिए, पॉइंट में आंसर आएगा, तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं अपॉन 7, ऐसे करके डिग्री ले दीजिए बेटा। दिस इज आल्सो राइट आंसर, पूरा नंबर आपको मिलेगा। अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं फर्दर, तो आप पूरा इसको डिवाइड करके पॉइंट में आंसर ला करके आप लिख सकते हैं। ऐसे बेटा एंगल B की वैल्यू आ जाएगी। एंगल B की वैल्यू क्या आपने माना 4x, 4s × 4 × 90/7। फिर एंगल C की वैल्यू, फिर एंगल D की वैल्यू। आप सारे वैल्यू आप निकालिए और कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके पहले जो अभी हमने लिखा था वो भी और ये भी, ठीक है। और इसी के साथ देखते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं, आपके सामने रखते हैं, उसके बाद जो है इस वीडियो को क्लोज करते हैं, ठीक। समय देख लेते हैं एक बार। समय लगभग हो गया हमारे पास, अच्छा आधे घंटे बीत गए हैं। वाह, आधे घंटे तो हो ही गए। तो क्वेश्चन भी एक नया लेना था। थोड़ा सा इसको रोकूंगा। चलिए बेटा, देखिए क्वेश्चन लिखने में, मिटाने में बार बार टाइम वेस्ट होता है, इसलिए मैंने पहले ही कैमरे को रोक करके क्वेश्चन को लिख लिया, ठीक है। अब देखिए आगे, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 हमने और एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके बीच में रखा है, ताकि जो आपने कंसेप्ट अभी तक पढ़ रखे हैं क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड, पैरेललोग्राम से रिलेटेड, ठीक है, वो आपको अच्छे से प्रैक्टिस में आ जाए, ठीक है। ताकि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अगर आए इन फ्यूचर, या हो सकता है इस एग्ज़ाम में आए या ना आए, किसी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाता है, तो आप उसको बहुत ही ईजिली उसको कर सकें, ठीक है। तो इसको बेटा ज़रूर इसको करके जाइए, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को, क्योंकि ऐसे जो कम्पिटिटिव क्वेश्चंस होते हैं बहुत अच्छे होते हैं और हर लेवल पे पूछे जाते हैं, ठीक है। चाहे कंपटीशन के लेवल पर बात करें या फिर किसी भी हाफ ईयरली या फिर फाइनल एग्ज़ाम की बात करें, तो अक्सर ऐसे क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए देखते हैं। इन द गिवन फिगर ABCD, एक फिगर है ABCD इज ए पैरेललोग्राम। यहाँ पे बता रहे हैं कि पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम के बेटा सारे फीचर्स आपके दिमाग में आ जाने चाहिए कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। ये सारी बातें आपके दिमाग में आ जानी चाहिए, यानी AB पैरेलल टू DC एंड AB इक्वल टू DC, AD इज इक्वल टू BC एंड AD पैरेलल टू BC। अब देखिए, in the given figure ABCD is a parallelogram in which angle BDC is equal to 41 डिग्री। देखिए BDC इक्वल टू 41 डिग्री, एंगल BAD इक्वल टू, देखिए BAD इक्वल टू बेटा क्या 44 डिग्री। देन फाइंड एंगल CBD। हमें क्या फाइंड करना बेटा, ये फाइंड करना है CBD, ठीक है। तो बेटा अगर हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है, देन अगर हमारे पास बेटा इस ट्रायंगल में देखिए DCB में
अगर हमें ये एंगल भी पता होती तो यहाँ पे हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लेते। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए बेटा, सिंस यहाँ पे लिखेंगे सिंस क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए पैरेललोग्राम। अब बेटा पैरेललोग्राम में एक और भी फीचर है, एक और इसका कंसेप्ट है, टॉपिक है, ठीक है, जिसमें ये कहा गया है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। इट मीन्स एंगल A इज इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B, ये कंप्लीट एंगल जो आप लेंगे ये इक्वल टू बेटा इस कंप्लीट एंगल के हो जाएगा, ठीक है। अगर ये पैरेललोग्राम है, ये बेटा इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा, है ना। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसी के साथ ही अब इसी को बेटा हम अप्लाई करेंगे। इट इज़ ए पैरेललोग्राम सो दैट एंगल DCB, ठीक है, या फिर हाँ एंगल DCB इज इक्वल टू एंगल DAB। और बेटा DCB की वैल्यू क्या हो जाएगी, DAB की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, कितना है DAB, देखिए DAB, चाहे इसको DAB लिखें चाहे इसको BAD लिखें, तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको BAD लिखिए, ठीक है, ताकि इसको आपको समझाने में आसानी हो। यहाँ पे 54 डिग्री आ जाएगा, यानी बच्चे अब क्या आ गया, आपका ये वाला एंगल आ गया 54 डिग्री, है ना। इसके अपोजिट साइड वाला जो एंगल है ये भी 54 आ गया। अब बेटा यहाँ पर आपका ट्राइंगल आपका बना DBC, इसमें आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए। यहाँ पे लिखिए अप्लाइंग, यहाँ पे एक लाइन लिखिएगा, ठीक है, मैं जगह कम इसलिए नहीं लिख रहा हूँ। अप्लाइंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऐसे लिखिएगा, अप्लाइंग एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल DBC, है ना। तो बेटा क्या हो जाएगा 41 डिग्री प्लस, देखिए जो आपको फाइंड करना है एंगल CBD प्लस बेटा ये 54 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब बेटा ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अब आपकी जिम्मेदारी है ये क्वेश्चन को सॉल्व करिए और इसका आंसर बताइए कि एंगल ये CBD की वैल्यू जो है कितनी आएगी। ये मैंने क्वेश्चन बना दिया है। अब 41 को बेटा इसमें ऐड करिए, फिर उधर ले जाके माइनस करिए, फिर इसकी वैल्यू आपको आंसर कमेंट बॉक्स में आपको देना, ठीक है। ये हिंट में दे रहा हूँ, उतना आप कर सकते हैं। चलिए ये हो गया एक क्वेश्चन, ठीक है। और एक क्वेश्चन बच्चे और देखिए, डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD बाइसेक्ट ईच अदर इफ एंगल A इज इक्वल टू 46 डिग्री देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल B। अब यहाँ पर बेटा क्या कह रहे हैं, एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, क्या गिवन है, क्वाड्रिलेटरल। बना लेते हैं क्वाड्रिलेटरल, दिख रहा है कि नहीं, ABCD क्वाड्रिलेटरल दिया है, कह तो रहे क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है। कैसे देखिए आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल बता रहे हैं, ये भी नहीं बता रहे हैं कि ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है, क्या बता नहीं रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली बता रहे हैं कि क्या है। अब सुनिएगा, बाइसेक्ट ईच अदर, इसके डायगोनल्स जो हैं बेटा बाइसेक्ट ईच अदर। अब जब किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स, जैसे मान लो ये इसका डायगोनल लिखोगे AC और ये है BD, अगर बाइसेक्ट करते हैं, इक्वल पार्ट में बेटा डिवाइड करते हैं एक दूसरे को, देन ऐसे क्वाड्रिलेटरल बेटा क्या होते हैं, पैरेललोग्राम होते हैं। एक थ्योरम में आपने प्रूफ किया था, याद आया, ठीक है। तो ये बेटा उस हिसाब से बेटा ये क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। सो दैट सिंस इट बाइसेक्ट ईच अदर, दैट इज यहाँ पे एक लाइन आप यही वाले लाइन ऐसे करके लिखिएगा, सिंस डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD बाइसेक्ट ईच अदर, दैट इज सो दैट इट इज अ पैरेललोग्राम, यानी ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अब बेटा जब ABCD आपका पैरेललोग्राम हो जाएगा, तब आप इसमें पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है, उसको आप यूज करेंगे, क्योंकि बेटा यहाँ पर एंगल A की वैल्यू दिया है कितना 46 डिग्री, और आपसे पूछा क्या बेटा, एंगल B की वैल्यू पूछा है, एंगल B की वैल्यू ये पूरा पूछा है। तो बेटा आज जानते हैं किसी भी पैरेललोग्राम में एक और नई प्रॉपर्टी आपको इंट्रोड्यूस हो रही है। देखिए आपने पहले तो किया होगा वैसे क्लास 7th 8th में, लेकिन फिर से आपको बता रहा हूँ कि जो दो एडजेसेंट एंगल होते हैं किसी भी पैरेललोग्राम में, दो
एडजेसेंट एंगल होते हैं, एकदम पास पास वाले एंगल। जैसे ये अपोजिट एंगल है और ये दोनों आपस में एडजेसेंट है, ये दोनों आपस में एडजेसेंट है, ये दोनों आपस में एडजेसेंट है। द सम ऑफ टू एडजेसेंट ऑफ अ पैरेललोग्राम, द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो बेटा ये हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। यहाँ पे बच्चे क्या लिखेंगे, 46 प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, तो इसको बेटा सॉल्व करिएगा, एंगल बी की वैल्यू बताइएगा, 180 माइनस 46, बेटा जो आएगा यहाँ पे आंसर लिख देना। ठीक है, सो दैट यू कैन सॉल्व दिस, और इस तरह से बेटा आपका एक आंसर आ जाएगा। दोनों का आंसर बेटा आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए बेटा बस इतना ही, और क्वाड्रिलेटरल में इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, जितना वीडियो मैंने करा दिया है दोनों वीडियो में अच्छे से कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, रिवीजन के भी तौर पर, कंसेप्ट के भी बेसिस पर भी आपको इसमें से कहीं कोई कमी नहीं आएगी। हाँ, थ्योरम जो आपके नोट्स में कराए गए हैं क्लास में, उसको जरूर करके जाइएगा। ठीक है, जितने सारे थ्योरम है एक बार सबको प्रूफ कर लीजिएगा, एक बार समझ लीजिएगा जितने थ्योरम क्लासरूम में कराए गए, क्योंकि हो सकते हैं एक दो को वो छूटे हों तो वो भी उसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उस पर बेस्ड कंसेप्ट भी अलग अलग क्वेश्चन में यूज होते रहते हैं, तो उसका बहुत सी इंपॉर्टेंस है। ठीक, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, सो दैट we will take a new chapter, what is the circle, okay, theorems of circle and some questions of the circle. Okay, thank you so much for watching this video, best of luck.